Governments promoted protectionist economic policies with extensive state intervention and regulation. The end of Cold War and an acute balance of payments crisis in 1991 led to the adoption of a broad program of economic liberalization. Since the start of the 21st century, annual average GDP growth has been 6% to 7%, and from 2014 to 2018, India was the world's fastest growing major economy, surpassing China. Historically, India was the largest economy in the world for most of the 2 millennia from the first until 19th century. अब प्रश्न उठता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, नॉर्मल होने में कितना समय लगेगा। तो आइए जानते हैं सर्वे द्वारा। पहला प्रश्न है अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी। तो इसमें मैंने सर्वे पर गौर किया तो पता चला 58% लोगों ने इसे आशावादी, 30% ने अनिश्चित और 12% ने निराशावादी। नॉर्मल होने में कितना समय लगेगा। तो 89% सोचते हैं कि सामान्य रूटीन आने में 2 से ज़्यादा महीने लगेंगे। 11% लोगों का मानना है कि 0 से 1 महीना लगेगा। 48% मानते हैं कि 2 से 3 महीने, 4% 1 साल से ज़्यादा, 8% 7 से 12 महीने, 29% 4 से 6 महीने। साथ ही सर्वे में यह बात भी सामने आई कि पैसा खर्च कैसे करेंगे, खर्च में कटौती कैसे करेंगे। तो 73% मानते हैं कि अब पहले की तुलना में ज़्यादा संभल कर पैसा खर्च करेंगे, तथा 67% ने अपने खर्च में कटौती करने की बात कही है। 67% ने कहा है कि वे अब जूते और कपड़े कम खरीदेंगे। सिर्फ ने कहा मनोरंजन के लिए बाहर नहीं जाएंगे। 45% होम इंटरटेनमेंट पर खर्च करेंगे। किस बात की किन्हें ज़्यादा चिंता सताती है कि कोरोना कब खत्म हो सकता है, इसे लेकर भी बीते दिन आंकड़े शेयर किए गए। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पर आती हूँ, वो है व्हाट इज कोविड-19 पॉजिटिव एंड निगेटिव सिनेरियो। कोविड-19 क्या है? पॉजिटिव एंड निगेटिव सिनेरियो। The full form of COVID-19 is China-oriented virus and infection disease caused by a newly discovered coronavirus. Most people infected with the COVID-19 virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. Older people and those with underlying medical problems like cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease, and cancer are more likely to develop serious illness. How can we protect them? Protect yourself and others from infection by washing your hands or using sanitizer and not touching your face. Wash your hands in a smart way, that is 30 seconds palm to palm. Cover mouth, nose with face masks. Understand the isolation process. Try to take daily 5 seasonal fruits. Second last point is positive and negative scenario. पॉजिटिव सिनेरियो 50% को लगता है कि कोरोना ने सिखाया है कि हमारे पास जो है उसका सम्मान करें। 48% मानते हैं कि संकट की वजह से तकनीक बेहतर होगी। 6% को लगता है कि कोरोना से कोई भी अच्छा बदलाव नहीं होगा। लोगों का ये भी कहना है कि इससे होली रिवर गंगा गॉट क्लीन हो गई, द स्काई गॉट क्लीन। Open WHO, a web-based learning platform, has launched the free online courses Introduction to Emerging Respiratory Viruses, included novel coronavirus. WHO is utilizing an international network to expert laboratories to provide support in the detection of the COVID-19 virus globally. अब आते हैं निगेटिव सिनेरियो पे। व्हाट आर निगेटिव सिनेरियोज? पहला, डेथ ऑफ पीपल इन अ लार्ज नंबर, बहुत सारी संख्या में लोग मर गए। डेथ ऑफ पीपल इन अ लार्ज नंबर। सेकेंड, ओवर कोरोना वायरस पीपल आर सिमिटेड टू होम, घर में लोग सिमट गए हैं। थर्ड, पीपल्स बिहेवियर आर चेंजिंग विद द कोरोना वॉरियर्स। फोर, होम वायलेंस इंक्रीजेज। My third point is challenges and opportunities about COVID-19 and part of the speech of yesterday's great Prime Minister Modi ji. A new India industrial and trade policy is needed to incentivize or entrepreneurs to be makers, not just traders. They must build a Make in India hub to meet domestic and global COVID-19 related demand and subsequent rebound and revenge consumption when pandemics spread. When pandemic मृत्यु दर and mortality मृत्यु संख्या of the disease itself curtailed to enforce social
distancing on indispensable bullet is the coronavirus disease, that is COVID-19 war. Now move on Modi's speech. पीएम कोरोना संकट से उबरने का एक ही मार्ग आत्मनिर्भरता, सेल्फ इंडिपेंडेंस। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी मंगलवार को देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान की घोषणा की। इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित किया। 20 लाख रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित किया। यह देश के जीडीपी का करीब है। यह पैकेज एमएसएमई, दिहाड़ीदार मजदूरों, मध्यम वर्ग और उद्योग जगत सहित तमाम वर्गों के लिए होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आर्थिक पैकेज में विभिन्न वर्गों को क्या क्या मिलेगा, इसका ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार से देना शुरू करेंगी। देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण पूरी तरह नए रंग रूप में होगा। नियम भी नए होंगे। राज्यों के सुझावों के आधार पर 4.0 से जुड़ी जानकारी 18 मई से पहले दी जाएगी। उन्होंने आशा दिखाई कि हमारी जिंदगी सिर्फ कोरोना वायरस के इर्द गिर्द नहीं सिमट सकती, बल्कि काफी हद तक सामान्य हो सकती है। उन्होंने कहा 21st सेंचुरी भारत की ये सपना ही नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी भी है। उनके द्वारा बताए आत्मनिर्भरता की